We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन, ईश्वरीय संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। The foundation or the thesis of this program is this: when you are connected with God, your life will be better. इस प्रोग्राम की बुनियाद तो बस यही है कि जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो जाता है। I want to show to you the God of the Bible. मैं आपको बाइबल के परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ, Because this Bible says He is the creator of heaven and earth. क्योंकि बाइबल कहती है कि उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। Also it says He created me and you in His own image. बाइबल ये भी कहती है कि उसने आपको और मुझे अपने ही स्वरूप में बनाया है। And He knows fully about us. और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। He knows fully about our physical body. हमारे शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। He knows fully about what we are going through, our emotions. वो हमारी भावनाओं को पूरी तरह से जानते He हैं। knows our thinking. वो हमारी सोच जानते हैं। Therefore, when I tell you, read His Word to shape your life, it means definitely what the Bible says can have impact because the one who gave the Bible knows everything about you. इसलिए जब मैं आपसे कहता हूं कि उसका वचन पढ़िए या आपके जीवन को आकार देगा, तो इसका मतलब है कि निश्चय बाइबल आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि जिसने बाइबल दी है वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। Have you ever seemed a task or a target that seems mountainous to you? क्या आपने कभी ऐसा कोई टारगेट या टास्क हासिल किया जो आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल लग रहा था? Have you ever felt, oh, this one I cannot do? क्या आपने कभी ये सोचा कि ओह, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, It's not possible, I'm going to give up. ये तो संभव ही नहीं, मैं इसे छोड़ देता हूँ। And today, what I'm going to share with you is from the life of David. और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो दाऊद के जीवन से है। And biographical sermons or biographies that we find in the Bible are life transforming. बाइबल में जो हम बायोग्राफी देखते हैं या फिर बायोग्राफी का जो संदेश होता है वो जिंदगी बदलने वाला होता है। Simply because the ones whom we are reading about in the Bible are humans like you and me. केवल इसीलिए कि बाइबल में हम जिनके बारे में पढ़ते हैं वो तो निश्चय आपके और मेरे जैसे मनुष्य थे। They had flesh and blood like you and me. उनमें आपके और मेरे जैसे लहू और मांस था। But definitely they had faith in God, enormous amount of faith in God. और निश्चय ही वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, बहुत ज्यादा भरोसा रखते थे। So in that context, we want to see today how this man David was able to overcome a great giant who was standing before him. तो इस संदर्भ में आज हम देखेंगे कि दाऊद कैसे अपने सामने खड़े रहने वाले उस बड़े दानव पर जय पाया। You know, when you look at the story, I'm sure if you are a Christian already watching this program, you know the story. अगर आप विश्वासी हैं, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप ये कहानी जानते होंगे। Suppose you're someone who is not a Christian watching this program, or I've never read it in the Bible this way. अगर आप विश्वासी नहीं हैं और आप ये कहते हैं कि बाइबल में मैंने ये कहानी कभी नहीं पढ़ी, And Bible says the story to be very, very clear and also to show and prove that with the power of God, we will be able to overcome any challenge. बाइबल ये बहुत ही स्पष्ट रूप में इस कहानी के द्वारा बताती है कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम अपनी जिंदगी की किसी भी चुनौती पर जयवंत हो सकते हैं। There was a group of people called people of Israel. देखिए, कुछ लोगों का समूह था जिसे इस्राएली लोग कहा जाता था। And there were many enemies to the people of Israel. और इस्राएली लोगों के बहुत से शत्रु भी थे। And one of the enemies were called as Philistines. और उनके बहुत से शत्रु में से एक शत्रु थे पलिश्ती लोग। And these Philistines always, come and fight against Israel. ये पलिश्ती लोग हमेशा आकर इस्राएल के विरुद्ध में लड़ते थे। Very often Israelites overcame them. और अक्सर इस्राएली उन पर जयवंत होते थे। But sometimes Philistines also defeated Israel. लेकिन कई बार पलिश्तियों ने भी इस्राएलियों को हराया। But this one was very, very different and unique, the war that we are going to talk about. लेकिन जिस युद्ध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ये तो बहुत ही अलग And था। Philistines camped on the one side. और पलिश्तियों ने एक तरफ अपनी छावनी डाली, उन्होंने डेरा लगाया। And Israelites camped on the other side. और इस्राएलियों ने दूसरी ओर अपना डेरा डाला। And there was a man called Goliath. और गोलियत नाम का एक व्यक्ति था। गोलियत बहुत ऊंचा था। And he came out from the Philistine army, stood in the middle and started shouting like this. और वो तो पलिश्ती सेना में से बाहर आया, मध्य में खड़े रहा
और वो इस तरह से चिल्लाने लगा, वो इस तरह से ललकारने लग गया। When we say he is a strong man, giant, जब हम कहते हैं कि वो तो बहुत ही बलवान और दानव जैसे था, the description Bible gives is interesting. तो बाइबल हमें जो विवरण देती है ये तो बहुत ही दिलचस्प है। Let me read verses 4 to 7 from the 17th chapter of 1 Samuel. पहला शमूएल अध्याय 17 के वचन 4 से 7 तक यहाँ पर पढ़ते हैं। A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze, weighing 5,000 shekels. On his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 4 से वचन 7 तक हम पढ़े तो ये पाते हैं। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वो पत्थर का झीलम पहने हुए था जिसका तौल 5,000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधे के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। इस तरह गोलियत का विवरण दिया गया है। Isn't it interesting, the description that the Bible gives about this man? ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि बाइबल इस मनुष्य का विवरण देती है, I want to highlight a few of these for your reference. और इनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, And that will help us to understand what actually David was facing. और इससे आपको ये जानने में मदद होगी कि दाऊद सच में किसका सामना कर रहा था। It talks about his height. ये उसके कद के बारे में बताती है। It says 6 cubit and a span. ये कहता है 6 हाथ और 1 बित्ता की थी। It's about 9 feet and 9 inches according to our standards. हमारे स्तर के अनुसार देखा जाए तो ये 9 फीट 9 इंच का कद था, Almost 10 feet. लगभग कहिए 10 फीट के आसपास। It's like as if you're looking at the roof in your house. मानो जैसे आप अपने घर की छत को देखते हैं, And that's the kind of height he had. यानी उसका कद तो इतना ऊंचा था, And he had a bronze armor. और उसने पीतल की झीलम पहनी थी। It says it weighed about 5,000 shekels. और उसका वजन तो 5,000 शकेल था। It's about 57 kilograms on his body. इसका मतलब 57 किलो की झीलम वो अपने शरीर पर पहने हुए था। And his spear had the iron point और उसकी भाले की जो छड़ है वो बड़ी थी, that weighed about 600 shekels. और उसका वजन 600 शकेल लोहे का था। It's about almost 7 kgs. यानी कहिए जो भाले की जो छड़ थी, जो लोहे का भाग था, 7 किलो का And था, there was someone who is walking in front of him. और कोई तो उसके आगे आगे चल रहा था। His shield bearer was walking ahead of him. उसकी ढाल लेकर चलने वाला व्यक्ति उसके आगे आगे चल रहा था। And it was such a picture Bible gives about this man. He comes and makes a big noise, shouts at the people of Israel. और बाइबल इस व्यक्ति के बारे में इतना बताती है कि वो बाहर आकर इस्राएली लोगों को ललकारता है। Why do you come up in line for battle? तुम युद्ध के लिए ऐसे एक साथ क्यों आए हो? Am I not a Philistine? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ? Are you not the servants of Saul, the king of Israel? और क्या तुम शाऊल के दास इस्राएली लोग नहीं हो? You choose a man to come and fight with me. तुम एक पुरुष को चुनो कि वो मुझसे आकर युद्ध करे। If he kills me, we will be your servants. अगर वो मुझे मार दे तो हम तुम्हारे दास हो जाएंगे। If I overcome him or if I kill him, you will be our servants. परंतु यदि मैं उसे मार दूं तो तुम हमारे दास हो जाओगे, इस तरह से उसने कहा। And he defied the armies of Israel. उसने इस्राएली सेना की निंदा He की, defied the God of Israel. उसने इस्राएल के परमेश्वर की निंदा की, And he always said, come, bring a man to fight with me. और वो हमेशा यही कहता था कि आओ मेरे विरुद्ध में लड़ने के लिए एक पुरुष को लेकर आओ। So when he made such a big noise, all the Israelites were frightened. और जब वो इस तरह से चिल्लाता था तो सारे इस्राएली उसकी आवाज के कारण डर जाते थे। Nobody had the courage to go and face this giant. किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर इस दानव का सामना कर सके। It's a natural feeling.
देखिए, ये तो बिल्कुल एक स्वाभाविक महसूसीकरण है कि डर जाए। Sometimes, we also go through this fear. कई बार हम भी ऐसे डर से जाते हैं। When we see giants, जब हम दानवों को देखते हैं, when we see things that we cannot overcome, ऐसी चीजों को देखते हैं जिन पर हम जय नहीं पा सकते हैं, when things seem too big for us. जब सब कुछ हमारे लिए बहुत बड़ा दिखाई देता है। Oh, what people do these days. ओ, इन दिनों में लोग क्या करते They हैं? just don't simply go and hide. वो केवल जाकर छिप नहीं जाते हैं। They kill themselves nowadays. अब इन दिनों में ऐसा हो रहा है कि लोग खुद आत्महत्या कर लेते हैं। Oh, the challenges ahead of us should not be killing us. हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो हमें मारने वाली ना हो। We should trust in ourselves and we should trust in the God who has created us. हमें खुद पर भरोसा रखना है, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है जिसने हमें बनाया है। And the natural reaction is seen here, very obvious reaction. और यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक ऐसी प्रतिक्रिया देखी गई है। They were all afraid and going and hiding. वो तो सब डर गए थे और जाकर छिप रहे थे। And the Philistine was very, very happy. Ha ha ha. See, nobody is there to fight with me. और पलिश्ती तो बहुत ही खुश हो गया था कि देखो, मेरे विरुद्ध में लड़ने के लिए कोई भी नहीं है। My dear friends, this is not the first time in Israel that these things have happened. मेरे प्यारे दोस्तों, इस्राएल में ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था। But God wanted Israelites to be courageous and bold. लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएली लोग साहसी और हिम्मत वाले हों, Because they were His people. क्योंकि वो तो उसके लोग थे। God assured them the victory. परमेश्वर ने उन्हें विजय की शाश्वती दी थी। Do you remember we read in the book of Numbers when they sent the 12 spies to go into the land of Canaan and spy the land and give some feedback about the land. You know what happened? आप जानते हैं, जब गिनती की किताब में वहां पर 12 भेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, तो फिर उस समय क्या होता है, क्या आप इस बात को जानते हैं? And Numbers 13:26 we read 12 spies were sent and they said they were giants. We were like grasshoppers. गिनती 13:26 में हम पढ़ते हैं कि 12 भेदियों को भेजा गया और उन्होंने आकर खबर दी, वो दानव जैसे बड़े हैं और हम तो बिल्कुल टिड्डियों जैसे हैं। And definitely they will defeat us. और निश्चय वो तो हमें हरा ही देंगे। And people were bitterly weeping after hearing these words from those who went to spy. जो भेद लेने गए थे उनकी ओर से इन शब्दों में सुनकर लोग वहां पर रोने लग गए थे। And my dear friends, what I want to tell you is we may face challenges like this, but I want to tell you that challenges ahead of you are never to be compared with the God who is with you. ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने की चुनौतियां परमेश्वर जो आपके साथ है उसकी तुलना में कभी नहीं होनी चाहिए। Israelites many times reacted like this. इसराइलियों ने कई बार इसी तरह से प्रतिक्रिया की। But David, the man whom God had chosen to be the king over Israel, he said, I can go and fight out this man. लेकिन दाऊद, जिसे परमेश्वर ने इसराइलियों पर राजा होने के लिए चुन लिया था, उसने कहा कि मैं जाकर इस गोलियत से युद्ध करूंगा। He had the victory. और उसने विजय प्राप्त की। What's the secret? इसका भेद क्या है? And I want to share with you today, if we follow those secrets or those principles found in 1 Samuel 17, definitely our lives can also be victorious. मैं बताना चाहता हूँ, पहला शमूएल अध्याय 17 में जो भेद बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, अगर हम उनका अनुकरण करते हैं तो हम भी विजयी हो सकते हैं। You know, we were looking at Israel and a man who was challenging the people of Israel, defying the armies of the living God and saying, you come and fight with me, any one person from your army. हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति इस्राएली सेना की निंदा कर रहा है, उन्हें चुनौती दे रहा है कि तुम में से कोई भी एक पुरुष आए और निश्चय ही वो मुझसे युद्ध करे। इस तरह से वो उन्हें चुनौती देता है। And there was one person who was willing. और बस एक ही व्यक्ति था जो इच्छा रखता था, जो कि इसके लिए तैयार था। And how did he decide on that? और उसने इस पर निर्णय कैसे लिया? How did he commit his life to achieve such a great task? उसने ऐसे महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना जीवन कैसे समर्पित At the किया? same time, what was he relying on? और इसी के साथ साथ वो किस बात पर आधारित था? I believe a few things that are very obvious in this passage can help us also to have victories in our life when we face big challenges. मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्याय में ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते The हैं। first thing I want to point out is David's zeal for
the living God of Israel. सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि इस्राएल के जीवित परमेश्वर के लिए दाऊद के मन में जिज्ञासा Or थी। to overcome a giant, what do you need? एक दानव पर जयवंत होने के लिए आपको किस बात की जरूरत है? Oh, I want a strong body. ओ, मुझे बहुत ही बलवान ऐसा शरीर चाहिए I want every kind of arms that is possible to protect me. और मेरी रक्षा करने के लिए हर संभव हथियार Oh, चाहिए। what David did was, he had the zeal of God, or zeal for God and for the people of Israel. दाऊद में तो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की चीजों के लिए और इस्राएली लोगों के लिए जिज्ञासा थी। And I want you to open your Bibles to 1 Samuel 17. मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल में पहला शमूएल अध्याय 17 निकालिए। Verses 25 and 26. वचन 25 और 26 पढ़ते हैं। Now the Israelites had been saying, do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt his family from taxes in Israel. David asked the men standing near him, what will be done to the man or for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय ही वो इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? I don't think David is interested in money, wealth and houses. मैं नहीं सोचता कि दाऊद तो धन संपत्ति और घरों में बहुत दिलचस्पी लेता था, वो पैसों के पीछे नहीं जाता था। I think his main concern is the defiance the Philistine was hurling at the living God. मैं ये सोचता हूँ उसकी मुख्य परवाह की बात तो ये थी कि ये पलिश्ती जीवित परमेश्वर की निंदा कर रहा है। How can this man defy the armies of the living God? ये व्यक्ति कैसे जीवित परमेश्वर की सेना की निंदा कर सकता है? In the same chapter, 10th verse, we read like this. इसी अध्याय में वचन 10 में हम पढ़ते हैं, And then the Philistine said, this day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. अध्याय 17 वचन 10 कहता है, फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। And David could not tolerate the defiance against the people of God. परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में इस तरह ललकारने को दाऊद सह नहीं सका। He could not accept this man talking about the living God. वो स्वीकार नहीं कर पाया कि ये मनुष्य जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे कह रहा है। And one of the things he kept on emphasizing is how this man is defying the armies of the living God. और वो एक बात पर जोर देते रहा कि कैसा ये मनुष्य जीवित परमेश्वर की सेना को इस तरह ललकार सकता है। My dear friends, I want to tell you the God we believe in today, not just, the God we are talking about in the Old Testament, He is there today and He is still a living God. मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर तो पुराने नियम के परमेश्वर ही नहीं, लेकिन वो तो आज भी जीवित रहने वाले परमेश्वर हैं। In the book of Jeremiah chapter 10 verse 10 we read like this. यिर्मयाह 10:10 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, But the Lord is the true God, He is the living God, the eternal King. When He is angry, the earth trembles, the nations cannot endure His wrath. परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। And the God of the Bible is a living God. बाइबल के परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, And that is what David is concerned about. और दाऊद इसी के बारे में परवाह किया करता था। And I want to tell you, this God is alive today in your life. मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में ये परमेश्वर जीवित हैं। And today He can step in when there is a giant. जब आपके जीवन में कोई दानव होता है तो निश्चय ये परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। When you are facing challenges that you think are mountainous. जब आप ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी हैं, And this God is living today. और ये परमेश्वर तो आज जीवित And है। in the New Testament there's a very interesting verse. देखिए, नए नियम में एक बहुत ही दिलचस्प वचन है। When Jesus asked about who He is or about His identity to His people, one confession Apostle
Peter makes is this. जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, तब पतरस ने एक बात प्रकट की। You are the Christ, the Son of the living God. तू तो मसीह है, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। And a lot of people today need to believe this. और आज बहुत से लोगों को इसी पर विश्वास करना चाहिए। Who is Jesus? यीशु कौन है? He is living वो God. जीवित परमेश्वर हैं। Are we zealous today like how David was? क्या आज हम दाऊद के जैसे जिज्ञासा से भरे हुए हैं? One of the things he kept on saying is he's the living God. एक बार वो बार-बार कहता है कि वो तो जीवित परमेश्वर हैं। He is defying the names of the living ये तो God. जीवित परमेश्वर के नाम को दोष दे रहा है। The armies of the living God. जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। And I want to tell you that God is living today. आज वो परमेश्वर जीवित है। He is alive and active in your life. वो आपके जीवन में जीवित है और सक्रिय है। And it is that zeal that actually pushed David to face this giant. और इसी जिज्ञासा के कारण दाऊद आगे बढ़ता है ताकि वो इस दानव से युद्ध कर सके। Do you have any such zeal in your life today? क्या आज आपके जीवन में इस तरह की कोई जिज्ञासा है? We are serving, we are belonging to a God who is alive and active today. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो आज जीवित है, जो सक्रिय रूप में काम करते हैं। And the other important thing David did was to overcome the difficulties that come along the way in this facing the giant. दानों का सामना करते हुए जो मुश्किलें आने वाली थी उन पर जय पाने के लिए दाऊद ने एक और काम किया। And when you read from 27 onwards, 27 to 32, we have a lot of hurdles that came in between as David faced this challenge. वचन 27 से वचन 32 पढ़े तो इस चुनौती का सामना करते हुए दाऊद को बहुत सी मुश्किलों में से होकर जाना पड़ा। You know, the Eliab we were talking about एलियाब जिसके बारे में हम बता रहे थे, उसका भाई last week, पिछले हफ्ते बताया, and he was the elder brother, वो तो दाऊद का बड़ा भाई था। and he comes and tells David, why are you here? और वो आकर दाऊद से ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? Oh, we have some sheep in the desert and you left all the sheep and you came here to watch the battle? जंगल में हमारी कुछ भेड़ें हैं, उन्हें छोड़कर तुम यहाँ पर युद्ध देखने के लिए आए हो? I know you are conceited. मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। Your heart is wicked. तुम्हारा हृदय दुष्ट है, इस तरह से उसके बड़े भाई ने कहा। And you know, David was really taken aback, shocked. दाऊद सच में इस बात से चकित हो गया था Elder brother talking like this. कि बड़ा भाई इस तरह से कह रहा है। But David was very, very conscious that this man was defying the living God. लेकिन दाऊद तो बहुत ही सचेत था कि ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर की निंदा कर रहा है। So he did not care much about that. तो उसने अपने बड़े भाई की बात की उतनी परवाह नहीं की। He moved on. वो आगे बढ़ा। And you know, sometimes in our life we know that the main enemies for us are our own family members. कई बार हम अपने जीवन में जानते हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु तो हमारे परिवार के सदस्य In हैं। the Old Testament we have many examples like that. पुराने नियम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। Jesus very bluntly puts it in Matthew chapter 10 verse 36. मत्ती अध्याय 10 वचन 36 में यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा है, A man's enemies will be the members of his own household. मनुष्य के जो शत्रु हैं वो तो उसके खुद के परिवार के, उसके घराने के लोग होंगे। And the second challenge David faced was from the king Saul himself. दूसरी चुनौती जो दाऊद ने सामना की वो तो राजा शाऊल से थी। You know, when David said, I will face this giant and defeat him, जब दाऊद ने कहा कि मैं इस दानव का सामना करूंगा और मैं इसे हरा दूंगा, he was taken to King Saul. तो उसे राजा शाऊल के पास में ले जाया गया, उसे वहां पहुंचाया गया। And Saul looked at David और शाऊल ने दाऊद को देखा and he said, oh, you're only a young man. और उसने कहा तुम तो एक नौजवान हो। Oh, he's been a warrior from his वो youth. तो अपने बचपन से ही योद्धा है। You will not be able to defeat him. तुम उस बड़े दानव को, उस योद्धा को हरा नहीं पाओगे, ऐसे शाऊल ने कहा। When you read 32 and 33, you understand that. वचन 32 और वचन 33 पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे। And then Saul put on his dresses on him. और फिर शाऊल जो है वो अपने वस्त्र, अपने हथियार दाऊद को पहनाता है। But still David said, no, 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 I don't want this also. फिर भी दाऊद ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। This will be even more burdensome than useful. ये तो उपयोगी होने से बढ़कर मेरे लिए बड़े बोझ हो जाएंगे। Oh, lot of hurdles, lot of difficulties we have to overcome if you really want to face the giant. अगर हम दानव का सामना करना चाहते हैं तो हमें बहुत सी रुकावट और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। And one thing very importantly is your experience in the personal life
will breed the confidence to overcome the giant. और एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन का अपना अनुभव उस दानव से लड़ने के लिए आपको हिम्मत देगा, वो आपको साहस देगा। One of the things David was confident about was, एक बात के बारे में तो दाऊद पूरी तरह से भरोसा रखता था। he told Saul, उसने शाऊल से कहा, "Oh, I was taking care of the sheep. मैं भेड़ों की रखवाली कर रहा था। Oh, there was a time when the bear came और फिर एक समय भालू आ गया and I tore it apart. और मैंने उस भालू को फाड़ दिया, उसे मार दिया। There was a time when a lion came to attack the sheep. और एक बार भेड़ पर हमला करने के लिए सिंह आया, I killed that. मैंने उसे मार दिया, I tore his mouth. मैंने उसका मुंह फाड़ दिया। And definitely this Philistine will be one like them. और ये पलिश्ती तो निश्चय उनके जैसा हो जाएगा। That's a confidence. ये भरोसा होता है The victories in the past. कि भूतकाल की जो विजय प्राप्त की है And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था, That confirmed that God will deliver. उसने ये साबित किया, निश्चित किया कि परमेश्वर छुड़ाएगा। I want you to have that confidence today. मैं चाहता हूँ कि आज आप में ये भरोसा हो। Dear friends, that is my encouragement to you. दोस्तों, आज मैं यही प्रोत्साहन देना चाहता Are हूँ। you worrying? क्या आप चिंता कर रहे Are हैं? you sitting and do not know what to do with this problem? क्या आप बैठकर सोच रहे हैं मुझे पता नहीं कि समस्या का मैं क्या करूं? Paul says very clearly, I can do all things through Christ who gives me strength. पौलुस कहता है कि जो मसीह मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। The victory is possible when you have God on your side. जब परमेश्वर आपकी ओर से होते हैं तो ये विजय संभव होती है। That's what David says. यही दाऊद ने कहा, I'm coming to you in the name of the living God of Israel. मैं इस्राएल के जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध में आता हूं। Today you believe that God, क्या आज आप इस परमेश्वर पर विश्वास करते you हैं? will have power for living this life. तो आपके पास इस जीवन जीने के लिए सामर्थ होगी। You will be bold. आप साहसी होंगे, You will be courageous. आप हिम्मतवर होंगे। Problems will be there, समस्याएं तो होगी ही, but definitely you will be able to face it and overcome it. पर निश्चय आप उसका सामना करके उस पर जयवंत हो जाएंगे। That's what he is calling you for today. आज वो आपको इसी के लिए बुला रहे हैं। He is there to help you. वो आपकी मदद के लिए हैं। God bless you today. प्रभु आज आपको आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number